So my dear students, very precious good morning to all of you. Welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Myself Dr. Sanjay Singh, Biology teacher, Subrat Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. In previous lectures, I have discussed about the structure of chloroplast as well as early experiment of the photosynthesis in very detail. Today, now we are going to discuss the photosynthetic pigments. First of all, what is the photosynthetic pigment? Photosynthetic pigment is a type of pigment. They are present in all autotrophs, and these photosynthetic pigments play a very significant role. They absorb sunlight and this solar energy converted into chemical energy by this pigment. So photosynthetic pigments play a very significant role for the photosynthesis process. In the autotrophic plants, there are three main types of photosynthetic pigments. Photosynthetic pigment. Pigments present in autotrophs. They are three types. First is chlorophyll. Second is carotenoids, and third is phycobilins. The three types of photosynthetic pigments present in most of the autotrophs में आपको पाई जाती है, and these pigments play a very significant role for the process of photosynthesis. So first of all, discuss on chlorophyll. Number one, discuss on chlorophyll. Chlorophyll is most abundant and most important pigments of plants. And the second importance points of the chlorophylls, they are insoluble in water and soluble in organic solvent. Organic solvent like benzene, ether and chloroform. So means all the types of chlorophylls, they are insoluble in water, soluble in organic solvents. ये भी their very important characteristics of the chlorophyll. They are seven different types. वो कौन सा था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोक्लोरोफिल and bacterioviridin. Here 7 different type of chlorophylls found in autotrophic organisms. They are various type: chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, E, bacteriochlorophyll and bacterioviridin.
Next property of the chlorophyll. Chlorophyll A is the main pigments of plants, main pigment of plant, because they convert light energy into chemical energy, light energy into chemical energy. This is the very important function of chlorophyll A. The chlorophyll A is the main pigments of the plants. They convert light energy into the chemical energy. तो आप कह सकते हो कि chlorophyll A फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपको पाया जाता है, ऑल द प्लांट्स में पाया जाता, नॉट मोस्ट ऑफ द प्लांट, और बिकॉज ओनली हैव ए कैपेसिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी इज predominantly found in green plants. और वो कौन सा होगा? ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो आप ये देख सकते हो कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल बी. तो क्लोरोफिल बी इज predominantly फाउंड इन द ग्रीन प्लांट, मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट contains chlorophyll B. Clears? Next, chlorophyll A is the blue-green in colors, and chlorophyll B are yellow-green in colors. So both are greenish in color. Next is chlorophyll C, D and E, found in brown and red algae. The type of chlorophylls, they are basically found in brown and red algae. Bacteriochlorophyll and bacterioviridins found in photosynthetic bacteria. I have discussed detail about the photosynthetic bacteria in previous lectures in early experiment of the photosynthesis. There are two type of bacteria mentioned there. Green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria, both are the photosynthetic bacteria. They perform photosynthesis. तो ठीक है, तो in this bacteria contains two type of special type of chlorophyll, that is known as bacteriochlorophyll and bacterioviridin, and both the pigments play a very significant role for the synthesis of food molecule by the process of photosynthesis. Next is the structure of chlorophyll A and B, because the main pigments in क्या some slight differences takes place between them. Next, the structure of chlorophyll A and chlorophyll B. Structure of chlorophyll A and chlorophyll B. Here is the magnesium ions. Rings are present in ears. Here is the structure of
Here is the first, second, third, fourth and fifth. ये the magnesium ion, they are present in the center area. ये centers area में होगा. First to fourth is known as pyrrole rings. Pyrrole rings. Fifth is cyclopentanone rings. साइक्लोपेंटानोन रिंग्स, और इसको अगर मिला दिया जाए दैट इज नोन एज पोरफायरिन हेड. पोरफायरिन रिंग्स आर पोरफायरिन रिंग्स, इसको हम बोल सकते हैं पोरफायरिन रिंग्स. इन हियर द हाइड्रोकार्बन चेन्स विच आर प्रेजेंट इन हियर द 20 कार्बन्स चेन, and this is the hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain that is known as phytol tails. Phytol tail. Here is the phytol tails. It contains 20 carbon atoms. The magnesium ions present in the centers. The some slight differences takes place. मैंने कहा कि chlorophyll A and B are some slight difference takes place between them. Here is the second, is the third position, here is the fourth position. At the third position, here is the variable OR groups are present. If the OR groups at the third position in the second rings, if CH3 methanes are present in here, they are belonging to chlorophyll A. वो किससे belong करेगी? Chlorophyll A. If the side chains having aldehyde groups, they are belonging to chlorophyll B. Some slight differences takes place between chlorophyll A as well as chlorophyll B. तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर केवल चेंजेज आपको होता है, बट सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी सेम होते हैं. देयर इज नो एनी डिफरेंसेस टेक्स प्लेस इन हियर. हियर सम स्लाइट डिफरेंसेस टेक्स प्लेस एट द थर्ड पोजीशन. हियर इज द वेरिएबल चेंज. They are differ with each other from chlorophyll A to chlorophyll B में ये differ करता है. तो here is the simple structure of chlorophyll A as well as chlorophyll B. तो अगर आप देखोगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक द काइट लाइक स्ट्रक्चर. कैसा होता है? पतंग के जैसा होगा. काइट लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर जस्ट लाइक दिस. Here 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Here the rings are present in here. That is known as porphyrin heads. Porphyrin head. And here is the tail region that is known as phytol tail. Phytol tails. So here is the structure of simple diagram of chlorophyll A or B. ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया जस्ट लाइक द काइट लाइक स्ट्रक्चर. तो magnesium ions play a very significant role for the synthesis of chlorophyll A as well as chlorophyll B. If the magnesium ion absent in the plant, no synthesis of chlorophyll A and B inside the leaves. Therefore, leaves become yellowish in color. That is known as chlorosis. उसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और उस सिम्टम्स को हम क्लोरोसिस का नाम देते हैं. तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है मैग्नीशियम आयन जो होता है ये कोर सेंटर्स बनाता है. और ये जो पोरफायरिन जो रिंग्स होते हैं दे आर अटैच विद, जो ये आपको मैंने पायरोल रिंग्स की बात बोला, ऑल द पायरोल रिंग्स दे आर अटैच्ड विद द मैग्नीशियम आयंस. तो हियर इज द हेड रीजन एंड हियर इज द टेल रीजन. हेड रीजन इज नोन एज पोरफायरिन रिंग्स और पोरफायरिन हेड बोल सकते हो. एट द टेल रीजन इज नोन एज फाइटोल टेल. फाइटोल टेल इज ऑल्सो नोन एज hydrocarbon chain. Here is the first photosynthetic pigments are totally completed. And next, second is the carotenoids. One thing is mentioned in here, they absorb. ये किसको absorb करेगी? They absorb maximally blue, violets and
red wavelength of light, red wavelength of light, wavelength of lights means chlorophyll A and B both are responsible for absorption of blue, violet and red wavelength of the lights are maximally. Next is carotenoids. Second is carotenoids. Carotenoids, they are found in both the chloroplast, cell organelles, chloroplast and chromoplast. Chromoplast. They are bright in colors, bright in color. आप ये कह सकते हो वाइड रेंज ऑफ कलर डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक जो होगा फ्रॉम येलो, ऑरेंज टू रेड इन कलर्स. ये ध्यान देना, कैरोटिनॉइड्स ये कलरफुल कंपाउंड्स को शो करते हैं. दे आर फाउंड इन क्रोमोप्लास्ट एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट. इसमें कन्वर्जन होता रहता है, क्रोमोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट. हम दो एग्जांपल्स आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. चिली अगर आप ले लो, मिर्ची को ले लो, तो जब उसके फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो इनिशियल स्टेज में दे आर ग्रीन इन कलर. एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ग्रीन कलर कन्वर्टेड इनटू रेड इन कलर. तो रेडनेस से हो गया तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट. सिमिलर वे इन टमाटो को ले, इनिशियल स्टेज द फ्रूट्स ऑफ टोमेटो इज ग्रीन इन कलर. आफ्टर एट द टाइम ऑफ राइपनिंग द ग्रीन कलर कन्वर्टेड इनटू रेड कलर ड्यू टू कन्वर्जन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट. तो ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर्स, insoluble in water, insoluble in water, soluble in organic solvent, soluble in organic solvent, organic solvents में soluble होगा. मैंने मेंशन किया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात, ये बताया था. करेक्ट. दे आर टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स, टू टाइप्स, कैरोटीन, कैरोटीन and xanthophylls, xanthophylls, carotene and xanthophylls. The carotene, the chemical formula of the carotene C40H56, here that is known as carotene, and here the oxygenated ये होता है तो C40H56O2. The carotene again they are divided into two types, alpha carotene, both the carotene found in the plants, but basically mostly beta carotene present in the plant, beta carotene. And beta carotene is what? Precursor of विटामिन ए. ये विटामिन ए का रिसोर्स माना जाता है. तो बीटा कैरोटीन मोस्टली जब आप देखोगे जो ग्रीनिश पार्ट्स होते हैं, जब हम लीफ उसको पार्ट्स को लेते हैं तो वहाँ पर कैरोटीन्स मिलते हैं, बीटा कैरोटीन, एंड बीटा कैरोटीन इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. तो जैंथोफिल्स में देयर आर टू टाइप्स, यहाँ पर भी आपको दो मिल जाएंगे. द नंबर वन फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन्स एंड ल्यूटीन. Fucoxanthin and lutein both are belonging to xanthophylls. तो carotene and xanthophylls both are belonging to carotenoids. The carotenoids is a type of accessory pigments. ये कैसा pigments है? accessory pigments. accessory, ये main pigments नहीं होगा, accessory pigments. accessory pigments ये क्या करेगा? ट्रैप, क्या करता है? ट्रैप सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी को ये ट्रैप करता है. और एंड ऑल द लाइट एनर्जी प्रोवाइड किसको करता है? टू द रिएक्टिंग सेंटर दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. तो आप कह सकते हो कैरोटिनॉइड्स इज ए टाइप ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कैसा पिगमेंट्स है. ये क्या कर सकता है इसको? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग
पिगमेंट्स, ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होगा, ठीक है। एंड दे एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट्स wavelength of lights, ये ब्लू एंड वायलेट वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। रेड वेवलेंथ इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द कैरोटीनॉइड्स। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? हमने इसके पहले बताया कि जो क्लोरोफिल्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट एंड रेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स आर मैक्सिमली, बट in case of carotenoids only 2 wavelength of the lights absorb maximally. Why? The red wavelength is not absorbed by the carotenoids. मैंने पहले भी बोला bright in color, wide range of color in distribution because the carotenoids are red in colors. वह red colors होता है, इसलिए वो अपने similar colors को absorb नहीं करता है, उसको reflect कर देता है। Clear? As well as what is the another roles? Carotenoid protect the chlorophyll A from photo ऑक्सीडेशन से बचाता है कि वो पिगमेंट डैमेज ना होने पाए, इससे वो बचाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पिगमेंट्स इज फाइकोबिलिन्स। थर्ड इज फाइकोबिलिन्स। देखो फाइकोबिलिन्स की अगर हम बात करते हैं, सिंगल यहाँ पर ये होगा फाइकोबिलिन्स। दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट फाउंड इन द प्लांट्स। ध्यान देना, द फाइकोबिलिन्स दे आर टू टाइप्स। फाइकोसाइनिन and phycoerythrin. Phycocyanin is responsible for blue colors, and it is responsible for red color. And ये ध्यान देने का कि फाइकोबिलिन्स इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट्स ओनली फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर बिलोंगिंग टू प्रोकैरियोट्स, इसको हम साइनोबैक्टीरिया का नाम भी देते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर्स विच कंटेन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। विद द हेल्प ऑफ बोथ द पिगमेंट्स दे एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट द पिगमेंट्स के अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए, सम स्लाइट डिफरेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम chlorophyll as well as carotenoids. They are soluble in water, and insoluble in organic solvent. तो ये यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात किया था, बट फर्स्ट टू क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स ओनली फाउंड इन द प्लांट्स, वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंड द फाइकोबिलिन्स आर ओनली फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर कोई भी पूछे कि प्लांट्स में क्या है, तीनों पिगमेंट्स पाएगा, फाइकोसाइनिन फाइकोबिलिन्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट, नेवर, नो, नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होता है फोटोसिंथेटिक प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिकॉज दे एब्जॉर्ब और ट्रैप सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है एंड सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हियर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर टोटली फिनिश्ड। नेक्स्ट is action spectrum. Next is the action spectrums. There are plotting present in here for action spectrums of the lights for photosynthesis process. पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो सन होता है, here is the sun जो रिलीज करते हैं
तीन तरह के वेवलेंथ रिलीज करते हैं, तीन तरह का, एक तरह नॉट वेवलेंथ, तीन तरह के इन लोअर वेवलेंथ जैसे यूवी रेज, एक एग्जांपल लिया जाए यूवी रेज एंड विजिबल रेज एंड आ जाओ इंफ्रारेड। तो ये द लो वेवलेंथ मतलब इसका जो होता है बिलो 390 mm के नीचे ये वेवलेंथ होती है, ये अबव 760 नैनोमीटर्स के ऊपर हो रहा है। इसके बीच वाला जो होता है दिस इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो हमको दिखती है। और इनका जो वेवलेंथ होता है स्टार्ट फ्रॉम 390 टू 760 नैनोमीटर। द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट्स कंटेन्स 7 कलर्स। इसमें कितने कलर्स होंगे? 7 कलर्स। कितने कलर्स? 7 कलर्स प्रेजेंट इन एयर। और वो 7 कलर्स क्या है? विबग्योर्स, the first wave is known as violets, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताने आपको जा रहा हूँ कि ये 7 जो डिफरेंट कलर्स होते हैं दैट इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड दिस 7 कलर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज PAR, photosynthetic active radiation, because these wavelengths are used by the plants or absorbed by the plant at the time of photosynthesis। इसके पहले वाला रिफ्लेक्ट करता है, इसके बाद वाला भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर प्लांट लेता है तो कौन सा लेता है? ओनली नैरो रेंज ऑफ द लाइट्स ऑफ द सन, दैट इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। द विजिबल स्पेक्ट्रम हैविंग 7 कलर्स। इसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट influence photosynthesis process, meaning the quality and quantity of the lights. According to this graph plottings, the two wavelength of the visible spectrums play a very important role for photosynthesis process because the plant absorb maximally one wavelength is blue wavelength, another is red wavelength, absorb maximally, जो absorb maximally होगा and another wavelength is the red wavelength। तो rate of photosynthesis is maximum in this wavelength of the light। तो आप यहाँ देख सकते हो हर ग्राफ प्लॉटिंग, here the wavelength of the lights, here the rate of photosynthesis measured by O2 released। ये जो रिलीज हो रही है इससे हम मेजर करते हैं। तो इस वेवलेंथ पे here the blue wavelength present in here, यहाँ पर एक पीक ऊपर जा रहा है। another peaks are developed here in the red region। at the two regions blue and red region the peak is highest मोड पे चला जाता है। it means the rate of photosynthesis is maximum in this peaks because the oxygen molecules released more amount in this peak in comparison to the other। कि 7 कलर्स होते हैं, उस 7 कलर्स में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स प्लांट एब्जॉर्ब मैक्सिमली एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस पर मैक्सिमम करता है। देयरफॉर
more photosynthetic products are formed in comparison to the other wavelength of visible spectrum. Green wavelength are totally reflected. Green wavelength totally reflect करता है. क्यों करता है प्लांट? Because the leaf कलर्स आर ग्रीन इन कलर. तो अपने सिमिलर कंपाउंड्स को क्या, अपने सिमिलर कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसको रहता है. ऑरेंज एंड येलो आर एब्जॉर्ब मिनिमली, मिनिमम एब्जॉर्ब होगा. तो आप ये ग्राफ देख रहे हो नीचे जा रहा है, यहाँ पर भी ये ग्राफ नीचे जा रहा है. तो ये ऑरेंज एंड येलो जोन है जहाँ पर ग्राफ नीचे जा रहा है. ठीक है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा. दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि वेवलेंथ of lights is inversely proportional to amount of energy. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर किसी लाइट का वेवलेंथ बड़ा है, एक हायर वेवलेंथ होगा तो क्या होगा? लेसर एनर्जी. उसके पास एनर्जी कैसी होगी? कम होगी, लेसर एनर्जी. एंड लो वेवलेंथ हाई एनर्जी. उसमें एनर्जी वैल्यू क्या होगी? हाई एनर्जी वैल्यू होगी. तो इस चीज़ों को भी ध्यान हमको रखना है. तो आप चाहे किसी भी ग्राफ प्लॉटिंग से देखो, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो एक्शन किस पर दिखा रहा है ज़्यादा? वह ब्लू एंड रेड रीजन. इन दिस ग्राफ हियर इज द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स. हमने पहले भी बात बोला था, सम स्लाइट डिफरेंसेस टेक्स प्लेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी बिकॉज द एब्जॉर्प्शन पीक इज मोर और लेस सिमिलर. यहाँ पर ब्लू एंड वायलेट रीजन की तरफ ये पीक इंक्रीज कर रहा है और रेड रीजन की तरफ इंक्रीज कर रहा है इन बोथ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी. बट सम स्लाइट डिफरेंसेस जो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ. सेकेंड थर्ड पिगमेंट्स इज दैट इज नोन एज कैरोटीनॉइड्स. मैंने बोला था कैरोटीनॉइड्स only absorb blue and violet wavelength of the lights, not absorb red wavelength of the light. तो आप इसका आप पीक देख सकते हो, यहीं तक इसका पीक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर पीक नहीं जा रहा है. इट मीन्स इनका जो एब्जॉर्प्शन पॉइंट्स क्या है? only in blue and violet regions पर दे एब्जॉर्ब मैक्सिमली, उसको एब्जॉर्ब करता है. बाकी रेड रीजन्स आर टोटली रिफ्लेक्टेड. इन Here आप देख सकते हो, here is the rate of photosynthesis and absorption of light. मैंने यहाँ पर दिया है, here is the action spectrum of photosynthesis superimposed on absorption spectrum of chlorophyll A. तो यहाँ पर हमने पहले भी बोला कि 2 peaks are available in the chlorophyll A. 1 peaks near the blue regions. ये कौन सा रीजन हुआ? Blue region. Another peaks are found near the red region. तो यहाँ पर अगर वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स इज मैक्सिमम इन दिस वेवलेंथ ऑफ द लाइट. जब ये डाउन जा रहा है तो इसका भी क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर क्या हो रहा है? डिक्रीजेज करेगा. व्हेन अगेन इंक्रीजेज, जब वो रेड रीजन की तरफ आ रहा है तो क्या सुपर इम्पोज्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि जहाँ पर इसके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होते हैं. हियर इज द एक्शन स्पेक्ट्रम. तो इससे क्या प्रूफ हुआ? आपको यही प्रूफ हुआ कि ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम, ध्यान देना, विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होगा? विजिबल वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स को एब्जॉर्ब करता है. एंड दिस वेवलेंथ में हमने बताया हैविंग 7 डिफरेंट कलर्स, उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. बट 2 इंपॉर्टेंट कलर्स जो हमने कहा, ब्लू एंड रेड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कलर बिकॉज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन दिस वेवलेंथ ऑफ द लाइट. अगर आपको कोई ये पूछे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा खाना किस पर बनता है तो आप किस पर बनोगे? रेड रीजन पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. किस पर होगा? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी इन कंपेरिजन टू द ब्लू रीजन्स. तो इस चीज़ों को भी ध्यान, कभी कभी एनसीईआरटी में बुक में भी मेंशन नहीं किया है, बट आपको जब नीट के एग्जाम्स देने आप जाते हो तो वहाँ पर ये पूछता है कि वो कौन सा ऐसा वेवलेंथ होगा है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईली मैक्सिमम होगा, तो वो हाईली मैक्सिमम इन द रेड रीजन.
तो दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.